have been wanting to record this video for a long time now. Like since 2 to 3 months, I've wanted to record this particular specific video, but I didn't get the time because life was so chaotic. Story times kept on flowing, and मतलब कंटेंट की शॉर्टेज नहीं हुई बेसिकली. कुछ ना कुछ स्टोरी टाइम, कुछ ना कुछ ड्रामा, कुछ ना कुछ chaos लाइफ में हो ही जाएगा. तो इसलिए हर हफ्ते कुछ ना कुछ कंटेंट आ ही जाएगा. बट नाउ since I got the time, I got the peace for myself, for the stability, right? तो मैंने सोचा क्यों ना खुद के लिए कुछ post किए जाए. So you can see, like my last video was also about me. This is also about me. This is not just a story time. This is some mindset shifts that I have realized in me for like past few months. And this is so huge because right now I am the person I was not before. मतलब मैं मतलब बिल्कुल change ही हो गई. And it's not some incidents that made me this way. I mean, as a person, my personality changed over here. So in this video, I'm going to share some mindset shifts that occurred with me. And first of all, before getting ahead into the video, the shout out, like ultimate and pro max shout out for my growth, for my healing, for my therapy or whatever, goes to first of all Pearly, and Tamkor. I don't know why मैं इतने वीडियोस देखती हूँ उसके और इतनी बारी वो खुद को ऐसे इंट्रोड्यूस करती है माय सेल्फ Tamkor, बट मेरे को Tamkor. I don't know. You can see her. Okay. So I mean ना, I'll tell you how it's all started. मतलब 1 साल समथिंग पहले मैंने पर्ली का फर्स्ट वीडियो देखा. That was stop performing. And like let me tell you, it was an eye opening video. और उस टाइम 2025 की बात है. 2025 जनवरी फरवरी समथिंग की बात है. स्टार्टिंग की बात है. और उस टाइम पे मैं बहुत यंग, बहुत डम, बहुत कुछ, ठीक है. बट स्टिल उस टाइम के हिसाब से मैं उस टाइम पे अच्छी थी. तो मैं इतनी ज्यादा अमेज्ड हो गई ना, लाइक वाओ व्हाट, मेरे को पता ही नहीं था दिस पॉइंट ऑफ व्यू एग्जिस्ट. इस वीडियो में क्या बात करी है वो मैं आगे बताऊंगी कि उन्होंने क्या बात करी है. बट यस, तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद मेरे माइंड में अवेयरनेस आ गई कि ओके मे बी आई एम डूइंग दिस ऑल फॉर वैलिडेशन. फिर उसके बाद आई जस्ट लेट इट गो, ठीक है. उसके बाद उस चैनल को मैंने सब्सक्राइब करके रख लिया फॉर श्योर, बट उस चैनल को रेगुलरली मैंने चेक नहीं किया, ठीक है. देन आफ्टर नाउ 2026, बिग 2026, after maybe 1.5 year, I have finally one more time went in that journey. और अब मैं भाई binge watch कर रही हूँ इनके videos, like binge watching their videos. पहले पर्ली की videos and then Tamkor. मतलब यार ये बंदियां ऐसी हैं ना, they have healed me. They have actually healed some part of me. Not like कि कुछ therapy वगैरह. I know therapy की कोई replacement नहीं है, but awareness. They have created the awareness in me. मतलब जो चीजें पहले मेरे को लगता था, मेरे को पता ही नहीं थी कि that exists. Now they have given the name to it. They have given the name to that behavior, and they have created the awareness for me to act upon. And then it is up to me to act upon them, to reflect upon them, to journal about it, to ask to myself about it. Am I going through this? Is this happening to me? How can I make it a part of my life? Basically things like that. And I have been doing this thing for like past 3 to 4 months now, and my personality has gone major shifts. मतलब मेरे को नहीं पता स्कूल में लोगों को पता लग रही है या नहीं लग रही, बट मेरे लिए मेरी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी हो गई है अब. क्योंकि पहले ना, मैं अगर अपना बात बताऊं, मैं बहुत ज्यादा आई एम एन एक्सट्रोवर्ट फॉर श्योर, यू कैन सी दैट. पहले मैं बहुत ज्यादा पीपल ओरिएंटेड थी. पहले मैं बहुत ज्यादा फ्रेंड्स ओरिएंटेड थी. पहले मैं बहुत ज्यादा ऐसी थी दैट आई वांट फ्रेंडशिप्स, दैट आई नीड फ्रेंडशिप्स, दैट आई शुड टॉक टू पीपल, आई नीड पीपल टू टॉक टू, एंड आई नीड देयर वैलिडेशन, आई नीड देयर अटेंशन. आई वाज लाइक दैट. And I'm not ashamed to admit it. Everyone needs validation. Everyone craves validation. But some people do it to an extent. And that is bad. And I was one of them. I used to crave validation. कुछ भी मैंने, let me give you an example. Last year, I bought myself a new glasses. Not this one. I bought myself the other pair of glasses जो कि टूट गए, और वो glasses थे cat eye glasses. They were very bold. They were a statement basically. Black color में cat eye glasses थे. They were my personality statement back then. And I loved them. मैंने जब वो अपने बर्थडे पे दिए थे, मैं बहुत भाई, मतलब मैं बहुत खुश थी. मेरे को पसंद आए थे वो, ठीक है, क्योंकि it was describing my bold and unapologetic personality. But next day when I went to school, I asked my friends about it. I asked कैसे है मेरे चश्मे. Validation, the need to get validation. Oh my goodness, wow. तो ऑब्वियसली भाई वो अगर मैं किसी से कुछ भी पूछ रही हूँ कि मैं कैसी लग रही हूँ या फिर कोई चीज कैसी है मेरे बारे में, तो मैं उनको राइट दे रही हूँ टू प्रोजेक्ट देयर ओन थॉट्स, देयर ओन ओपिनियंस ऑन टू मी. एंड मैं उनको ये राइट दे रही हूँ टू अफेक्ट माई मूड. मतलब देखो, हर किसी के अपने थॉट्स है, हर किसी के अपनी ओपिनियंस है, हर किसी की अपनी चॉइसेस है. अब अगर मैंने कुछ उन्हें अपना बताया है, ठीक है, मैंने उनसे पूछा कि मैं कैसी लग रही हूँ, तो अपने ओपिनियंस के बेसिस पर मेरे को कुछ
प्रोवाइड करेंगे फीडबैक या कुछ भी। और अगर मैंने उसको पूछा है दैट कैसी लगी हो, तो मैं उसकी उस फीडबैक से खुद को अफेक्ट होने दे रही हूँ। तो मैं एग्जांपल बता रही थी, मैंने अपने किसी दोस्त से पूछा दैट हाउ इज दिस क्लासेस लुकिंग, एंड दे वर लाइक, मेरे को तो खुद बहुत अच्छे लग रहे थे, मैं उस समय मेरे को लग रहा था कि ओ माय गॉड आई एम लुकिंग सो प्रिटी इन देम। बट some people, not like particular, but some people were like ज्यादा बड़े नहीं है ये, ज्यादा बड़े ग्लासेस नहीं है, ज्यादा बड़े लेंसेज नहीं है तेरे फेस के हिसाब से। And instantly, I felt turned off. My excitement ruined. My happiness ruined. I loved their glasses at one point. Now I felt like questioning their beauty. Now I was questioning myself in mirror. Am I really looking that beautiful? This was me. Like a year back, and the young me, that young teenage me, 15 to 16-year-old me. And most of us are like this. We even right now let people affect our mood, let people's opinion affect our thoughts. If they say something bad about me, it is about me. No. If they say something bad about me, it is not about me. It is about them. It is about their thoughts. It is about their opinions. Nothing about me at all. फर्स्ट थिंग तो ये थी कि मतलब मेरे लिए वैलिडेशन बहुत मैटर करती थी। मैंने कुछ भी किया है, मैं कुछ भी सीख रही हूँ, मैं कुछ भी अपने लिए इंप्रूव कर रही हूँ, या फिर मैंने कुछ भी नए कपड़े लिए हैं, नए ग्लासेस लिए हैं, कुछ भी है, मेरे को हर चीज में वैलिडेशन चाहिए। मेरे को हर चीज में अपने फ्रेंड्स से अप्रूवल चाहिए, मेरे को हर किसी से अप्रूवल चाहिए कि ओके आई एम डूइंग राइट, आई एम गोइंग द राइट वे, which is not good. Like, as someone who was once the victim of validation trap, I can clearly say that, bhai, this is the bad, like, this is the worst thing you can do to yourself. मतलब तुम imagine करो ना, the pity of having your emotions depend on other people. I don't care if the other person is your best friend, if the other person is your parent, if the other person is your boyfriend, girlfriend. I don't care about that. Let the other person be anyone, but imagine the pity of letting your emotions get affected by other people. I mean, I know it is very tough. It is super tough to, just ignore their opinions, to just separate yourself from their opinions. It is very tough. You get triggered. You get, you know, you just feel like, what the hell? Why? You get the ick. You feel the ick. You feel, oh my god, maybe I'm not enough. I understand that. It is very tough to work on that thing. And that is why I am proud of myself. Because I have worked on it. Like, seriously. Another thing is also related to this. Since I said that I was a very people oriented person, I am an extrovert, तो obviously मेरी लाइफ बहुत people oriented है। मेरे पेरेंट्स मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, मेरे दोस्त कितने अच्छे हैं, मेरे दोस्तों को मैं कैसी लग रही हूँ, मेरे क्लासमेट्स को मैं कैसी लग रही हूँ, मैं सबको अच्छी लग रही हूँ, या फिर अगर मेरी सबसे बात हो रही है या नहीं। My life is all oriented about that, right? And in the past year, like, I have lost friendships, especially in 2025. I've lost friendships. I lost my best friends. I lost my special people. I lost everyone. At one point, I was alone, and I was actually alone, and I was actually feeling lonely because I say that I've gone through a lot in my life. First time when my schools were changed, and then next time when my sections were changed. But still, every time through this, I had never been lonely. मतलब इतना lonely नहीं हुई थी ना मैं। 5th की अगर मैं बात करूँ, जो मेरे स्कूल चेंज हुए थे, मैं उन लोगों के साथ रह लेती थी जहां पर मेरे को आउटसाइडर फील करवाते थे, जस्ट टू फील इंक्लूडेड। तो इसलिए मैं कभी ऐसी अकेली नहीं रही थी कि हाँ यार, जहां पर मैं आउटसाइडर हूँ मैं वहां पे भी रह लेती थी कि एटलीस्ट मेरे से बात कर लो, एटलीस्ट मेरे साथ रह लो। आई फील icked out by myself right now so much I can't explain, but still that was younger me, and I have full kindness, full courage, full compassion for myself. But yes, I was like that. So, मेरे को आज तक in my whole 15 years of life, never had I ever been so lonely in my friendship that I have lost everyone in my life. And I was like, what the hell? Not everyone. I still had people, but the people that mattered most to me for like past 3 to 4 years left me suddenly. Like, suddenly. Wow. तो उन चीजों की वजह से मेरे को फिर भी अक्ल नहीं आई। मैंने तो मतलब मैंने बहुत दुख मनाया, मैं बहुत अकेली रही, मैंने बहुत अपने आप को ग्रीव किया कि ओके मेरी गलती है, मैंने गिल्ट में रही, रिग्रेट में रही, रिमोर्स में रही, एवरीथिंग। बट मैंने अपनी पर्सनैलिटी को चेंज नहीं किया। मैंने उस चीज का दुख मनाया कि उन्होंने मेरे को छोड़ दिया, बट मैंने अपनी पर्सनैलिटी को चेंज नहीं किया जिस पर्सनैलिटी की वजह से मेरे को दुख लग रहा था। वाई वॉज आई नॉट comfortable enough to be alone? Why was I not comfortable enough if people left me? Why did they hold so much part of my life that when they went away from my life was shallow?
Why? The question is why. Like, why were they a big part of my life that they made me shallow? Why were they such a big part of me? Why was I not a big part of me? Why was I not, a whole self of me? Why was my identity, my worth related to my friends, related to my people, related to my family? Why? Why? So this is the second shift that I have went through in the past few months, and that is I have made myself my identity. Finally, finally, I have made my goals, my dreams, my ambitions, my identity, and not the people I am with my identity. Now, every person in my life I am close with, every person in my life who is my friend or whom I yap to, is a valuable part of my life, no doubt. But they are just an add on to my life. They are not my whole life. That is the part that is the most important thing that I have realized over this whole my entire life journey, that everyone in my life, my friends, my family, my people, my teachers, my everything is just an outsider. Is just an outside thing. इवन माई अचीवमेंट्स, मेरी अचीवमेंट अगर मैं मेरी पोजीशन आती है नहीं आती, मेरी हर एक अचीवमेंट अगर मैं जिस पोजीशन में सिलेक्ट होती हूँ नहीं, मेरी हर एक अचीवमेंट इज आउटसाइड माई वर्थ. दे लाई हेयर. दे आर नॉट भव्या. My achievements, my family, my friends, my people don't make who I am. My dreams, not even my dreams. These are also external factors. अगर मेरी कल को मेरे ड्रीम्स फुलफिल नहीं होते हैं, अगर मैं कल को जो मेरे को बनना है वो मैं नहीं बनती हूँ, तब भी मैं खुद को भूलूंगी नहीं, तब भी मैं खुद उस स्पेस में नहीं जाऊंगी कि वेयर आई एम क्वेश्चनिंग माई ओन वर्थ, वेयर आई एम लाइक मैं हूँ कौन, क्यों हूँ मैं, क्या कर रही हूँ मैं. आई वॉन्ट बी लाइक दैट. आई विल क्लियरली नॉट बी लाइक दैट. सो दिस इज समथिंग दैट took me a lot of time. And ये कहना बहुत ही ज्यादा अनफेयर होगा कि मैं 3-4 महीनों में ऐसी बनी हूँ. नहीं, मैं 10th से लाइक 2024 से अपनी इन चीजों पर काम कर रही हूँ. धीरे धीरे अवेयर होते 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 स्टेप बाय स्टेप अपने माइंड सेट को इम्प्रूव करते हुए, अपनी स्किल को इम्प्रूव करते हुए, अपनी वर्थ को इम्प्रूव करते करते फाइनली आई हैव रीच्ड अ पॉइंट वेयर आई एम हैप्पी बीइंग अलोन. Yes, I am happy being alone. And I swear, younger Bhogya would feel like, what the hell? मतलब सीरियसली स्पीकिंग, लाइक अगर मुझसे तुम 2 साल पहले 2024 में पूछोगे ना कि भव्या तेरे को पता है ये पर्सन ये इंसान तेरी लाइफ से जा चुके हैं, अब वो तेरी लाइफ का एक पार्ट नहीं है, और तुम मुझसे 2024 में पूछोगे कि तेरे को पता है तू अकेले रह सकती है, तू अकेले सर्वाइव कर सकती है, मैं बोलूंगी पागल हो गए हो क्या, कुछ भी नहीं हो सकता भाई. मतलब उस टाइम पर मेरे को पता नहीं था कि मेरे लिए वो इंसान इतने मैटर करते हैं, बट उनके जाने के बाद मेरे को पता लगा कि भाई वो इंसानों के जाने के बाद मेरी लाइफ ही शैटर हो गई है. हाउ, व्हाई, व्हाट द हेल. तो yeah, that's why I'm so proud of myself for doing that. This is like the second shift. Third shift is about what is it about? It is about following my dreams and passion and taking stand for myself. Yes. मेरे को पता बहुत टाइम लगा. मतलब मैं ना, लेट मी टेल यू, मैं शुरू से हूँ, मैं बोल्ड तो शुरू से हूँ, मैं लड़ाई तो शुरू से कर सकती हूँ, मैं कलेश तो शुरू से कर सकती हूँ, पर never have I ever was confident in myself enough to stand up for my beliefs, to stand up for myself. Never. मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में भी क्या कहा है, मैंने अपने फर्स्ट एवर इस चैनल की वीडियो में भी ये कहा है दैट अगर कोई मेरी फैमिली, मेरे फ्रेंड्स या मेरे स्कूल के बारे में बोलेगा, मैं वो नहीं सुन सकती, है ना. मैं सुना दूंगी सामने वाले को. पर मैंने उस वीडियो में ये नहीं कहा कि अगर कोई मेरे बारे में, मेरे ड्रीम्स के बारे में, मेरे एम्बिशंस के बारे में, मेरी हॉबीज के बारे में कुछ कहेगा तो मैं वो भी नहीं सुन सकती हूँ, क्योंकि मैं उस टाइम पे वो सोचती ही नहीं थी. मैं उस टाइम पे खुद को इतनी इंपॉर्टेंस पे नहीं रखती थी 7-8 महीने पहले. नाउ आई एम दैट मच कॉन्फिडेंट, दैट मच सेल्फ लव इनफ कि मैं खुद के बारे में भी नहीं सुनूंगी. तुम्हें बैक हैंडेड कॉम्प्लीमेंट देना है, नॉट अलाउड. तुम्हें कुछ उल्टा बोलना है, नॉट अलाउड. तुम्हें मेरी हॉबीज, मेरे पैशन को क्रिटिसाइज करना है, नॉट अलाउड. तुम्हें मेरे एम्बिशंस के बारे में बोलना है कि कुछ भी सोच रही है, इतने बड़े सपने कौन रखता है, you are in a third tier city and you are dreaming of being like multi-millionaire or whatever, being successful, doing whatever you love. तू यहाँ पे जाने की सोच रही है, वो करने की सोच रही है, वगैरह वगैरह. तुम मेरे ड्रीम्स को क्रिटिसाइज करोगे, नॉट अलाउड. No matter who are you, no matter who that person is, who that person criticizing is, it is not allowed. Even my family, even my friends, even the people higher to me, they cannot now criticize me.
एंड इवन इफ दे डू, व्हाट आई एम गोना डू? पहली बात तो मैं स्टैंड लेती हूँ खुद के लिए, पहली बात तो मैं सामने से बोलती हूँ कि नो, दिस इज नॉट इट, दिस डज नॉट work out like this. My dreams are my dreams and I work for them and I daily work for them, and you have no right to say anything about me. You have no right to say anything about my dreams, my ambitions, my careers. No, you can't define it. I am the one in the agency of it. I am the one who decides whether I can do it or not. You are not the one who will decide it for me. No one. No one, not even my family. मैं अपने घर पे कलेश कर देती हूँ भाई, मैं अपने दोस्तों के साथ कलेश कर देती हूँ, तुम क्या बात कर रहे हो? Yeah. So this is like the third thing, and fourth most important thing, which is connected to first two things, is that this is like the most important part of this video, like most important part of this entire video, that मैंने अपने emotions की urgency, मैंने अपने emotions की urgency अब दूसरे वर्ल्ड को देना बंद कर दिया. Now that outer world does not have agency over my own emotions. It is very tough. First of all, very tough to, always be this cheerful smile and to never let the entire world affect you. It is very difficult. मतलब देखो ना, let me give you an example. स्टार्टिंग विद छोटे छोटे एग्जाम्पल्स जो छोटी लाइफ में होते हैं. सपोज करो तुम घर से स्कूल के लिए निकले, एक्टिवा पंचर हो गई. तुम घर से स्कूल के लिए निकले, तुम्हें लाइक ताने दे दिए गए. तुम घर से स्कूल के लिए निकले, तुम्हें रास्ते में पता लगा कि ओ माय गॉड ये रास्ता ही बंद है, तुम्हें दूसरे रास्ते से जाना पड़ेगा. छोटे इंसिडेंट्स. बड़े इंसिडेंट्स, तुम स्कूल पहुंचे एंड तुम्हारी लड़ाई हो गई तुम्हारे दोस्त से. तुम्हें पता लगा, तुम्हें टीचर ने बिना बात के डांटा, या फिर तुम्हें पता लगा दैट द टेस्ट यू स्टडीड फॉर द मोस्ट, यू डिडंट स्कोर इन दैट टेस्ट. ये तो हो गए थोड़े बड़े. उससे ज्यादा बड़े इंसिडेंट्स, किसी स्पेशल वन से लड़ाई हो जाना, दोस्ती टूटने की कगार पे आ जाना, कोई स्पेशल अचीवमेंट दैट मैटर टू यू द मोस्ट, that was not given to you, that opportunity was not given to you, that chance was not given to you. Lost opportunities, मतलब for me lost opportunities is the worst pain I can ever have, like worst pain. मतलब मेरे को याद है 10th का मैं अगर एक्सपीरियंस बताऊं, 10th में ना मैंने एक ओलंपियाड दिया था, नेक्स्ट टॉपर्स का ऑनलाइन ओलंपियाड था, एंड संडे को था, वो 1 बजे था, और मैं उस टाइम पे नाइट आउट थी, तो मैं सोकर ही 2 बजे उठी. मैं वो मिस हो गया. उसके बाद थर्ड, मतलब बहुत सारे बच्चे उसमें सेकंड राउंड पे गए, थर्ड राउंड पे गए, एंड आई वाज आउट देयर सो सैड. आई वाज इवन क्राइंग कि यार मैंने मिस कर दिया अपने सपनों की, अपने सोने की वजह से मैंने वो चीज क्यों मिस कर दी. तो फॉर मी एज अ पर्सन, फॉर मी लॉस्ट अपॉर्चुनिटीज और द अपॉर्चुनिटीज दैट आई डिडंट गेट द चांस टू हेल्ड इन, like it matters the most. It is like something, मतलब मेरे चैनल की वीडियो से भी पता लग जाता होगा, कभी मैं प्ले में सिलेक्ट नहीं हूँ, मैं ग्रेड में सिलेक्ट नहीं हूँ, ये रोना वो रोना, मेरे को बहुत फर्क पड़ता है भाई. तो हाँ, टॉपिक से नहीं भटक रहा है. टॉपिक ये है कि इतने बड़े बड़े रीजंस, किसी से दोस्ती टूट जाना या कोई अपॉर्चुनिटी ना मिलना, छोटे छोटे रीजंस कि सोच करो पैर के गोबर लग गया, व्हाट द हेल. छोटे छोटे रीजंस, हर चीज ना कहीं आपके मूड को टेम्पर करती है. कई लोग ऐसे होते हैं जो हल्की सी छोटी भी, मेरी टक्कर हो जाती है ना, सपोज करो मैं स्कूल जा रही हूँ एक्टिवा पे और मेरे रास्ते में किसी से टक्कर हो जाए, कईयों के लिए वो छोटी से छोटी चीज भी उनका मूड अफेक्ट कर देती है. ये छोटी चीज है, आई नो छोटी चीज है, बट कईयों के लिए मूड अफेक्ट कर देती है और उनका पूरा दिन ही बेकार जाता है, जस्ट बिकॉज दे कीप ऑन फीडिंग दिस नैरेटिव कि मैंने तो दिन की शुरुआत ही बेकार हुई थी, तो दिन तो बेकार जाएगा ही. बड़ी चीजें भी फिर उसी हिसाब से मतलब देखो ना तुम, यू गेट द आइडिया दैट वी लेट आवर सर्कमस्टेंसेस अफेक्ट आवर इमोशंस. It takes so much strength to hold the agency of your emotions to yourself. जैसे मैंने पहले कहा कि तुम वैलिडेशन सीख करना बंद करोगे ना, तुम ये सीख करना बंद करोगे कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, कि लोगों को तुम अच्छे लग रहे नहीं लग रहे हो, तुम ये पूछना बंद करोगे कि मैं कैसी लग रही हूँ आज. तो तुम अपने इमोशंस की एजेंसी, अपने इमोशंस की कंट्रोल, एजेंसी मतलब कंट्रोल, अपने इमोशंस का कंट्रोल दुनिया के हाथों में नहीं रख रहे हो, उन लोगों के हाथों में नहीं रख रहे हो, उन सर्कमस्टेंसेस पे नहीं रख रहे हो, खुद पर रख रहे हो, खुद पर वो बिलीफ रख रहे हो. एंड दैट मैटर्स. That is so difficult, but I am proud of myself that I am daily doing it step by step and step by step. एक इंसिडेंट बताती हूँ. मेरे फर्स्ट टाइम जब मेरे यूट्यूब पे हेट कमेंट्स आए थे, आज तक 2 बार मेरे यूट्यूब पे हेट कमेंट्स की बौछार हुई है. एक बार मेरे यूट्यूब पे हेट कमेंट्स आए थे, उस टाइम पे मैंने उसको इतना अफेक्ट करने दिया था ना खुद को. मैं पहले पता क्या करती थी, मैं पहले सबको दिखाती हूँ कि हाँ मैं सेल्फ कॉन्फिडेंस है,
बट रिसेंटली ही मेरे अंदर वो फाउंडेशनल लेवल ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस आया है कि एक्चुअली मैं आई डोंट गिव अ डैम। पहले मैं सिर्फ दिखाती थी दैट आई डोंट गिव अ डैम, बट नाउ मेरे अंदर फाइनली लाइक लास्ट के कुछ दिनों में ही, लास्ट के कुछ महीनों में ही ये कॉन्फिडेंस आया है। अभी भी कम है बट अभी भी है, मतलब लाइक पहले तो बहुत कम, अब थोड़ा अच्छा है, अभी भी इतना अच्छा नहीं है बट थोड़ा अच्छा है। तो पहले तो मैं भाई, जब मेरा फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था ना कि हेट कमेंट्स कुछ आ रही थी, मैंने तो भाई उसके बारे में मेरे इतना मूड अफेक्ट हुआ था ना, मतलब लाइक मैंने स्टोरीज लगा, पोस्ट कर, रिप्लाई दे, पता नहीं उनको इतने मीन मीन रिप्लाईज देती स्टोरीज पे कि हाँ तुम ऐसे कैसे कर रहे हो ये वो। Now I feel like that was just a waste of my energy, that was just a waste of my own, emotions and expressions and energy, like what the hell, why did I do that? तो अभी मेरे पास कल पता नहीं परसों फिर से हेट कमेंट्स आए, एक ही अकाउंट से आए थे, मैंने रिपोर्ट कर दिया सबको, फिर से मेरे पास हेट कमेंट्स आए, वैसे तो मैंने देखे ही नहीं थे, 2 दिन पहले के आ रखे थे, तो मेरे पास हेट कमेंट्स आए एंड दे वर वेरी स्टूपिड हेट कमेंट्स। मतलब तुम ये देखो ना, मैंने वो, अगर मैं पहले 1 साल पहले वो हेट कमेंट्स देखती तो मेरा गुस्सा चढ़ जाता कि ऐसे कैसे बोल रहा है ये इंसान। अब मैंने वो हेट कमेंट्स देखे तो आई वाज लाइक व्हाट द हेल, सो स्टूपिड। मतलब I was feeling pity over that person to say such things about me, and neither did I bother to comment them again. Neither did I bother to let it affect my mood. And I swear when I say this, मैंने वो कमेंट्स रात को देखे थे और मैंने एक बारी भी लाइक, वरना नॉर्मली मैं उन कमेंट, अगर हेट कमेंट्स आते हैं नॉर्मली मैं आधा घंटा 1 घंटा सोचती रहती, यार मैं कुछ तो कर रही हूँ, यार मैं अच्छा कर रही हूँ, पता नहीं क्या क्या। I didn't even bother to think about it for like 5 minutes, just not even 5 minutes. That is how much I have changed. I don't care about, surface level things now. Why? The question is why. I know the answer to. The answer is because like now I have become more and more goal oriented, more and more ambition oriented. Now my 2 life goals for this year is clear, at least for this year. मतलब academic goals की बात कर रही हूँ मैं, तुम्हें सारे goals बताती हूँ। Now my goals are clear. First of all, 2 academic goals for my this year is that I want to score 95 in boards. I know scoring high in boards does not matter in 12th because like you have to get the competitive exams and all that shit, but it matters for me for some reason and for some commitments I have. So yes, first things first. Second thing, I want to score like I am aiming for IISER Mohali, and IISER Mohali is the third most respected IISERs out of the 7th IISERs in India. So मेरे को IISER aptitude test में भी अच्छे से अच्छी rank लानी है. Yes, that is like the 2 academic goals. Now other goals. First goal is to become an influencer, to be at least consistent. मतलब मेरे को फर्क नहीं पड़ता मेरे सब्सक्राइबर्स हैं नहीं है, मेरे व्यूज अच्छे आ रहे हैं नहीं आ रहे, अब मैं सिर्फ खुद के लिए पोस्ट कर रही हूँ, सिर्फ खुद की खुशी के लिए पोस्ट कर रही हूँ, सिर्फ खुद को एक्सप्रेस करने के लिए पोस्ट कर रही हूँ। तो अब मेरे को चाहिए कि मैं बस कंसिस्टेंट रहूं, मेरे को फर्क नहीं पड़ता मेरे सब्सक्राइबर्स हो रहे हैं या नहीं हो रहे, क्योंकि ना मैंने 100 सब्सक्राइबर्स क्रॉस कर लिए हैं। आई फील सो हैप्पी, ओह माय गॉड, मेरे को पता है 100 सब्सक्राइबर्स की खुशी जा ही नहीं रही है, और खुशी की नहीं है, इट्स लाइक अ माइलस्टोन दैट आई हैव अचीव्ड, और अब मैं टेंशन फ्री हूँ। अब मेरे को 100 से 1000 जब भी हो जाए मेरे को फर्क नहीं पड़ता। पहले ना यार वो 3 डिजिट भी नहीं जा रहे थे, इट वॉज जस्ट ट्रबलिंग मी सो मच, बट अब वो 3 डिजिट हो गए, अब आई डोंट केयर, तुम जब मर्जी जैसे मर्जी करो, इट्स जस्ट नाउ माई पर्सनल डायरी, माई यूट्यूब इज माई पर्सनल डायरी नाउ, एंड आई एम गोना पोस्ट व्हाटएवर आई वांट। तो हाँ, फर्स्ट इज टू बी, थर्ड इज टू बी कंसिस्टेंट इन यूट्यूब। Fourth goal for my life is that I want to upskill myself, improve myself, grow myself in every aspect of my life, whether it is about learning programming, learning my skills, learning new skills, and improving the portfolio, or it is about improving my emotional bandwidth, improving my personality as a person, improving, my ability to heal myself, and improving my mindsets, every way, psychological, emotional, or technical and achievemental way, every single way I want to improve myself in every way. So this is like the fourth overall goal. तो जब तुम्हारी लाइफ इतनी फोकस्ड हो जाती है ना खुद के ऊपर, इतनी फोकस्ड हो जाती है to improve yourself, you don't give a damn of what the other person thinks about you. You don't even have the time to think about what other person have to think about you, because you are so busy creating the life you want for yourself. And that is like, I'm so loving about myself. This is the thing that I am now loving the most about myself, that finally I am the kind of person who is busy creating the life she wants for herself, rather than, just letting other people affect her opinions. Like, come on, that's so stupid of her. Bye.